Dynamic Programming 01 KNAPSAP Problem of Design and Analysis of Algorithm, lecture number 27. Dynamic Programming Review. We already solved one problem with the Dynamic Programming, which is LCS. So this is a little bit review of that lecture, and then after this we solve another problem which is KNAPSAP through Dynamic Programming. Dynamic Programming is a method for solving certain kind of problem. Dynamic programming can be applied when the solution of a problem includes solution to subproblem. We need to find a recursive formula for the solution, and we can recursively solve subproblem, starting from the trivial cases and save their solution in memory. In the end, we will get the solution of the whole problem with that process. Properties of a problem that can be solved with a dynamic programming. Simple subproblems. This is first category. We should be able to break the original problem into smaller subgroups that have the same structure. Optimal substructure of the problem. The solution to the problem must be composite of subgroup or subproblem solution. And the last one is subproblem overlap. Optimal subproblem to unrelated problem can be contain subproblems in common. So this is three types. इसमें आपको पता है कि LCS ऐसी है कि एक सिंपल प्रॉब्लम है और उसका हम सब प्रॉब्लम करके सॉल्व करते हैं. फिर हमारे पास एक KNAPSAP आ जाता है जिसमें हम ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर बना के उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. और एक मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन है जहाँ पे हम पिछले वाली हिस्ट्री को वहाँ पे डाल के और फिर हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ n मैट्रिसेस परफॉर्म कर सकते हैं. सो we have many problems which can be solved through this technique. लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस अभी हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, लेकिन यहाँ पे हम उसका रिव्यू लेते हैं कि प्रॉब्लम हाउ टू सॉल्व द लॉन्गेस्ट पैटर्न ऑफ द करेक्टर दैट इज कॉमन to two texts of string x and y. Dynamic programming algorithm solves subgroups until we get the final solution. Subproblems first find the LCS of prefixes of x and y. This problem has optimal substructure. An LCS of two prefixes is always a part of LCS of bigger string. Okay. This is the review of LCS. What we do in LCS problem, we define xi and yi to be prefix of x and y, which is length of I is the length of string x and j for the track of the string y. So m equals to mod of x and n equals to mod of y. We store the length of LCS xi yi in Cij. Cij is a matrix. Trivial cases that LCS x naught comma y comma and LCS xi comma y naught is empty. So we solve this problem by initializing them with 0. Recursive formula of CFJ is of composite of two cases. One is that when the string match of x of I and y of j and otherwise not match. So we use this recursive formula again to solve the problem. Longest common subgroup. This is still review. तो हम इसका complexity कैसे निकालेंगे? After we have filled the array C of I j, we can use this data to find the character that substitute या constitute the longest common subsequence. इसमें आपको पता है कि एक मैट्रिक्स होती है और वो आपकी m और n के ऊपर बेस करती है. तो दो साइड्स पे x और y हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपके पास जो है वो मूव हो रहा होता है. तो एल्गोरिथम रन्स इन बिग O of m into n, which is much better than the brute force algorithm of n to raise power m. तो ये जो सोल्यूशन है ये आपके पास जो अगर आप इसको ब्रूट फोर्स से सॉल्व करें उससे बेटर हमें आंसर है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी कम है. This is our KNAPSAP problem, which is called as 01 KNAPSAP problem. First, we have a given a KNAPSAP with maximum capacity of W and a set S consisting of n items. Each item I has some weight Wi and benefit of Bi. All Wi, Bi and W are integer values.
प्रॉब्लम है हाउ टू पैक द KNAPS टू अचीव मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ पैक आइटम। ये KNAPS प्रॉब्लम हम पहले ब्रूट फोर्स में भी कर चुके हैं और वहाँ पे भी आपको याद होगा कि हमारे पास आइटम्स और उनकी दो कंस्ट्रेंट हमें गिवन होते थे, एक उसका वेट और एक उसका प्रॉफिट। प्रॉफिट को यहाँ पे बेनिफिट कह दिया गया है और एक मैक्सिमम कैपेसिटी हमारे पास होती है ताकि हम आइटम्स को ज़्यादा वेट हासिल करने के लिए या ज़्यादा वैल्यू हासिल करने के लिए मैक्सिमाइज कैपेसिटी जो है वो हासिल कर सकें। तो ये 01 KNAPS प्रॉब्लम है। बिफोर गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दिस प्रॉब्लम, 01 KNAPS मीन्स क्या, या तो आप उसे कमोडेट करेंगे आइटम को या नहीं कमोडेट करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिफरेंट साइजेस के आइटम्स होते हैं और उनके डिफरेंट वेट्स होते हैं। जैसे ये है आइटम 1 जो है वो उसका वेट 2 है, उसका बेनिफिट 3 है। इसी तरह आइटम 2 का जो है वो वेट 3 है और उसका बेनिफिट 4 है। इसी तरह एक आइटम है जिसका 4 वेट है और उसका बेनिफिट वैल्यू 5 है। और इसी तरह एक आइटम है जिसका 5 है और उसका बेनिफिट 8 है। तो अब टिल 9 और 10 जो है वो हमारे पास, ये कुछ हमारे पास वेट और बेनिफिट वैल्यू गिवन है। तो इनको आइटम के साइज़ को देखते हुए इस टोटल मैक्स जो हमारे पास अवेलेबल है KNAPS इसमें हमने अकोमोडेट करना होता है ताकि हमें मैक्सिमाइज वेट और या मैक्सिमाइज बेनिफिट मिल जाए। सो प्रॉब्लम हमारे पास 01 में क्या है कि इन अदर वर्ड टू फाइंड मैक्स बेनिफिट या मैक्स वेट, ठीक है। तो ये दोनों इसमें ऑब्जेक्ट्स या सब्जेक्ट हो सकते हैं कि ज़्यादा बेनिफिट ज़्यादा वेट के फॉर्म में हमें मिले। द प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज जीरो ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज ईच आइटम मस्ट बी इंटायरली एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, यानी या तो वो अकोमोडेट होगा या नहीं अकोमोडेट होगा। जस्ट अनदर फ्रैक्शन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज फ्रैक्शनल KNAPS प्रॉब्लम where we can take fraction of items, ठीक है। तो इसका एक दूसरा भी वर्जन है जिसको फ्रैक्शनल KNAPS प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन अभी हम 01 पे ही फोकस कर रहे हैं। 01 KNAPS प्रॉब्लम ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम पहले भी कर चुके हैं। उसमें क्या होता था कि लेट्स फर्स्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद ए स्ट्रेट फॉरवर्ड एल्गोरिथम। Since there are n element, there are 2 raised per n possible combination of items। तो उसमें हम सबसेट्स बनाते थे, 5 सेट से लेकर 1 सेट से लेकर फिर 2 सेट 3 सेट, इस तरह से हम उससे करते थे। और इसमें हमारे पास वी गो थ्रू ऑल द कम्बिनेशन एंड फाइंड द वन विद अवर टोटल वैल्यू एंड टोटल वेट लेस और इक्वल टू W, ठीक है। तो ये हमारे पास उसमें स्ट्रेटजी होती थी कि तब तक हम कम्बिनेशन बनाते जाते थे जो कि वेट से इक्वल या उससे लेस रहेंगे, वो हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन में आएंगे। और उसका रनिंग टाइम जो है बिग O ऑफ 2n यानी एक्सपोनेंशियल में बन रहा था। ये उससे बेहतर अप्रोच है क्योंकि इसमें आपके पास जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो लीनियर रहेगी, m क्रॉस n यानी n स्क्वायर की ही फॉर्म रहेगी और इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज नहीं होगी जैसे कि ब्रूट फोर्स में हो रही थी। 01 KNAPS प्रॉब्लम ब्रूट फोर्स अप्रोच है और ये कैन बी डू बेटर, यस, विद द एल्गोरिथम बेस्ड ऑन डायनामिक प्रोग्रामिंग वी डू मच बेटर देन द ब्रूट फोर्स। वी नीड टू केयरफुली आइडेंटिफाई द सब प्रॉब्लम, हमें केयरफुली आइडेंटिफाई करना है। इफ आइटम्स आर लेबल 1 to n then a subgroup would be find an optimal solution which lie between this, ठीक है। तो सब ग्रुप में हमें बहुत केयरफुली उसका जो है वो आंसर या उसका सबसेट ढूंढने हैं। इसमें कैसे हम सब ग्रुप को डिफाइन करेंगे, इफ आइटम्स आर लेबल फ्रॉम 1 to n then a subgroup would be find an optimal solution for s of k, ठीक है। और उसमें क्या होगा कि आइटम लेबल फ्रॉम 1 to up till k, ठीक है। दिस इज a valid subproblem definition or the question that can we define the final solution s of n in terms of subgroup s of k। Unfortunately we cannot do that, explanation follows, ठीक है। तो इसको हम आगे भी फर्दर देखेंगे कि हमारे पास ये अनफॉर्चुनेट क्यों होते हैं। हम वो डिस्कस करेंगे कि S4 जो है वो S5 का पार्ट समटाइम नहीं भी होता, ठीक है। क्योंकि हम जब सबसेट बनाते हैं तो कुछ आइटम्स को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, कुछ को इंक्लूड कर देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर आइटम 1 है, S4 है, वो 4 आइटम पे मुश्तमिल और S5 5 आइटम पे है, तो वो दोनों सब प्रॉब्लम के लिए सेम नहीं होंगे। क्योंकि आप देख लें कि हर एक का वेट और जो उसका वैल्यू है वो डिफरेंट है
और W3 उसका बेनिफिट चेंज, W4 उसका बेनिफिट चेंज। सो हमें हर लेवल पे चेक करना पड़ेगा कि कौन सा सबसे बेटर हो सकता है, क्योंकि जैसे ही एंट्रीज या इंस्टेंट चेंज होगा हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे अगर S4 टोटल वेट देखा जाए तो अगर हम ये देखें तो ये 14 है, 2, 3, 4 एंड 5, इन सबको ऐड करें तो 9, 10, 11 एंड 3, 14, और टोटल बेनिफिट जो हमें इस वक्त इन चारों को मिल रहा है वो हमारे पास 5, 5, 10 एंड देन सॉरी बेनिफिट जो है वो ये है हमारे पास, और इसमें हम देख सकते हैं ये हमारे पास टोटल 20 है। जबकि अगर हम दूसरा सेट देखें जो कि S5 वाला है उसमें हमारे पास टोटल वेट जो है वो 20 है और टोटल बेनिफिट 26 है। तो इस मीन कि हम ये नहीं कह सकते कि एक सब प्रॉब्लम दूसरे सब प्रॉब्लम का डिफाइनिंग सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो सोल्यूशन फॉर S4 इज़ नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन फॉर S5। सो ये इसमें प्रॉब्लम है, इसलिए हमें इसको हर इंस्टेंट पे चेक करना पड़ता है। यहाँ पे हम देखने की define is a problem continue, as we know and we seen that in the last slide that S4 is not a part of S5. So our definition of subproblem is flaw and we need another one. Let's add another parameter W which represent the exact weight for each subset of item. The subproblem then will be computed with the B, K and W. So we need two parameters to track the problem. So जो रिकर्सिव इसमें हमारे पास फार्मूला बनेगा सॉल्व करने का सब प्रॉब्लम वो ये है BKW, के इसमें स्मॉल है, एन हमारे पास आइटम्स के लिए, दोनों की हम जो है वैल्यूज़ को देखेंगे कि इफ़ W ऑफ K ग्रेटर दैन W हो जाएगा तो हम फर्स्ट केस चलाएंगे, और अगर ये लेस हो जाएगा तो फिर ये नीचे वाला केस चलाएंगे। यानी हम हिस्ट्री में से ही मौजूद दो लोकेशंस में से मैक्स को उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट द बेस्ट सबसेट ऑफ SK हैज़ बीन टोटल वेट W इज़ वन ऑफ द टू, द बेस्ट सबसेट ऑफ K माइनस वन हैज़ टोटल वेट, और the best subset of K minus 5 has total weight W minus K plus the item of K. अगेन यहाँ पे रिकर्सिव फार्मूला के हम केसेस को डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास वो रिकर्सिव फार्मूला है। ठीक है, तो द बेस्ट सबसेट ऑफ SK हैज़ द टोटल वेट W either contain item K or not. For first case, if W of K greater than W हो तो item K cannot be part of the solutions in it. If it was, the total weight would be greater than W, which is unacceptable. तो कभी भी आपका जो total weight है उससे W of K कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, second case, W of K less than equal to W, then the item of K can be in the solution and we choose the best case with the greater value. ठीक है, जो पहले से हिस्ट्री में मौजूद है और हम उसको वहाँ से चूज़ करके नए वाले लोकेशन पे फिट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 01 एल्गोरिथम का टोटल एल्गोरिथम है। ठीक है, पहले हम W को इनिशलाइज, स्मॉल W को इनिशलाइज करेंगे 0 से W तक, 0 से W, और जितनी भी लोकेशन जो है वो कैपेसिटी के लिए यूज़ हो रही हैं वो वहाँ पे पहले वाले रो को इस तरह से 0 कर देगा। इसी तरह आइटम को भी पहला वाला जितना भी कॉलम है उसको 0 कर देगा, क्योंकि ये नहीं कि अगर आपके पास वेट गिवन नहीं है, जैसे इसमें है आई गिवन है, आइटम गिवन है, वेट गिवन नहीं है, या आइटम गिवन नहीं है, वेट गिवन है, तो उन दोनों केसेस में वहाँ पे 0 आपने इनिशियलाइजेशन कर देनी है। उसके बाद आपने लूप चलाना है बाकी लोकेशंस के लिए, ताकि अब आपने देखते हैं कि WI लेस देन इक्वल टू W आइटम कैन बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। अगर है तो आप इसको देखेंगे कि इफ़ BI प्लस BI माइनस 1 कॉमा W माइनस WI ग्रेटर देन B ऑफ I माइनस 1 कॉमा W। ठीक है, और इस तरह से आपने जो भी वैल्यू आएगी उसको BFIW पे असाइन कर देना है। एल्स क्या होगा कि हमें BIW को इक्वल करना होगा BI माइनस 1 कॉमा W। ठीक है, तो रिकर्सिवली इसके अलावा एल्स क्या हो सकता है कि BIW में वो वैल्यू आ सकती है जो पहले से ही आपके पास किसी लोकेशन में पड़ी है, और आपने उस लोकेशन के मुताबिक अगर W ऑफ I जो की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन W हो गई है तो फिर हमें पुराने वाली वैल्यू में से ही किसी से लोकेशन पुट करनी पड़ेगी।
इसका रनिंग टाइम जो है वो बेसिकली आपका जो है ये एक लूप है, ये एक लूप है, तो ये सिंगल लूप है और उसके बाद ये एक नेस्टेड लूप है। तो बेसिकली इसके ऊपर आपका जो नंबर ऑफ आइटम और टोटल कैपेसिटी जो है उसके साथ आपका बिग ओ शो हो जाएगा, जो जिससे आप रनिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे। अब हम एग्जांपल करने लगे हैं जहाँ पे आइटम हमारे पास 4 है, कैपेसिटी हमारे पास 5 है और ये वो तमाम आइटम्स हैं जिनका हमें सेट गिवन है। यानी ये पहला वाला इसमें आइटम का वेट है, दूसरा उसका बेनिफिट है। ठीक है, ये इसका वेट है, ये बेनिफिट है, ये वेट है, ये बेनिफिट है, ये वेट है और ये बेनिफिट है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग से, अब वो हम मेथड देखते हैं। पहले आपने वो कॉलम जहाँ पे आपके पास वेट गिवन है लेकिन आइटम गिवन नहीं है, इसको 0 से इनिशियलाइज कर देना। ठीक है, और फिर दूसरे में आपने जहाँ पे आपके पास आइटम गिवन है लेकिन वेट गिवन नहीं है, उनको भी 0 से इनिशियलाइज कर देना, जैसे ये। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट बेसिकली जहाँ से सही तरह से आप शुरू करेंगे वो ये है हमारे पास, जब हमारे पास आई की वैल्यू भी 1 है और W की वैल्यू भी 1 है। देखिए मैं यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये हमने आइटम्स को शो कर दिए हैं उनके वेट और उनके बेनिफिट, यानी आप W ऑफ I कह सकते हैं और ये हमारे पास B ऑफ I है। ठीक है, तो ये इसका वेट है, उस आइटम 1 का वेट क्या है 2 है और उसका जो B ऑफ I बेनिफिट है वो 3 है। ठीक है, तो इसी तरह से हमने पुट करने से पहले यहाँ पे शिफ्ट सारी वैल्यूज़ को शो कर दिया। ठीक है, तो हमारा I इक्वल्स टू 1 आ गया, I की वैल्यू इस वक्त 1 है और W की वैल्यू भी 1 है, ये हमने शो कर दिया। BI की वैल्यू हमने कॉलम से ले ली, बेनिफिट 3 है और वेट 2 है। ठीक है, और W में इस वक्त क्या पड़ा हुआ था 1 पड़ा हुआ था। ठीक है, और W ऑफ I में क्या पड़ा हुआ था 2 पड़ा हुआ था। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है -1। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास WI की वैल्यू क्या है, W ऑफ I की वैल्यू है 2 और इस वक्त I की क्या वैल्यू 1। तो हम देखते हैं कंडीशन ट्रू होती है और फॉल्स होती है। तो इफ़ W ऑफ I इज़ लेस देन इक्वल टू W, तो ये तो फॉल्स होगी क्योंकि जो 2 है वो ना इक्वल है और ना ही लेस है। सो वी गो इन एल्स पार्ट। ठीक है, एल्स पार्ट में हम जाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे क्योंकि हमारे पास W ऑफ I जो कि 2 था और जो W था वो हमारे पास 1 था, तो 2 हमारे पास ग्रेटर आ गया 1 से। तो हम इस पार्ट में जाएंगे, इसमें हमने क्या करना है B ऑफ I W, B ऑफ I में अगर आप देखें तो इस वक्त हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 1, उसमें भी 1 है। तो इन दोनों लोकेशन को सॉल्व करने के लिए B ऑफ 1 1 यानी 0 और हमारे पास स्मॉल w की वैल्यू 1, यानी कि हमने इस लोकेशन पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसको हमने आगे B11 में पुट कर देना है। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको शो कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे हमने 0 पुट कर दी क्योंकि इससे पहले कोई वैल्यू हमारे पास मैक्स वाली अवेलेबल भी नहीं थी। अब हम फर्दर आगे जाएंगे, सेम हमारे पास अब देखिए हम जैसे जैसे मूव करते जा रहे हैं हमारे पास W की वैल्यू तो 1 रहेगी लेकिन आइटम्स जो हैं वो चेंज होते चले। ठीक है, अब देखें अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं इस लोकेशन पे जब हमारे पास W की वैल्यू 1 है और जो I है इसकी वैल्यू जो है W की वैल्यू 2 हो चुकी है। ठीक है, और हमारे पास W की वैल्यू 2 हो चुकी है और I हमारे पास सेम अभी तक 1 ही है क्योंकि हम कॉलम वाइज पहले इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस लोकेशन पे अब क्या आएगा वो हमें देखने के लिए सबसे पहले हमें कंडीशन देखनी। कंडीशन ये है कि इस वक्त W ऑफ में हमारे पास क्या पड़ा हुआ था 2 पड़ा हुआ था। ठीक है, तो वो 2 ही है और B ऑफ I हमारे पास 3 है और W ऑफ I इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, तो जब हम इसको पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 जो है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा 0 के। ठीक है, तो जो हमारे पास 2 है वो लेस दैन इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो
ये वाली कंडीशन जो है वो हमने अब चेक करनी है, और ये वाला जो लोकेशन है इसमें जो वैल्यू आएगी वो उसको हमने पुट करना है। ठीक है, तो इस वक्त हमारे पास बी आई में हमारे पास 3 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो 3 प्लस, अब हमें लोकेशन भी देखनी है, तो लोकेशन हमारे पास i-1 0 हो जाएगी, और w माइनस डब्ल्यू ऑफ आई, w माइनस डब्ल्यू ऑफ आई करेंगे तो वो भी हमारे पास 0 है। ठीक है, ये हमारे पास क्या ग्रेटर है, b ऑफ i माइनस आई 1 है, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा पहला लोकेशन, और w की क्या वैल्यू है इस वक्त 2 है, उसको हम पुट करेंगे। ठीक है, तो इस वक्त ये हमारे पास 3 प्लस 0 और ग्रेटर देन है किससे 0, क्योंकि 0 और 2 पे अगर आप देखें i की वैल्यू जहाँ पे हमारे पास 0 है और जहाँ पे 2 है, यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ, 0 पड़ा हुआ। ठीक है, और 0 0 पे तो ऑलरेडी लोकेशन पे 0 ही था। ठीक है, तो हमारे पास 3 ग्रेटर देन 0 आ गया। यस, तो फिर हम इसके मुताबिक फिलिंग करेंगे, और जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बी ऑफ आई की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो इस जगह हमें 3 पुट करना है। ठीक है, इस तरह से अब हम नेक्स्ट फिर चेक करेंगे कंडीशन, इस लोकेशन को फिल करने के बाद हम इस पे आ जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास कैपेसिटी 3 होगी। ठीक है, अब इस लोकेशन पे फुल करने के लिए हमें दोबारा सारी वैल्यूज देखनी है। आई की वैल्यू स्टिल 1 है, बी की अभी तक हम पहले आइटम को ही मतलब लोकेशंस पे देख रहे हैं। ठीक है, डब्ल्यू हमारे पास 3 हो चुके हैं, तो अगर हम देखेंगे तो 3 माइनस 2 जो कि ऊपर से क्या हो जाएगी कि 1 आ जाएगी, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और हमने कंडीशन देखनी है कि क्या हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू होती है या ये कंडीशन ट्रू होती है। ठीक है, तो हमारे पास w ऑफ i में 2 पड़ा हुआ है और w में 3 पड़ा है। ठीक है, तो ये इससे लेस है। ठीक है, तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है। फिर हम इसी कंडीशन के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे हमें b ऑफ i की वैल्यू 3 ही मेंशन करनी पड़ेगी, जो कि हम पीछे भी सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे आप दोबारा भी कर लें, bi में क्या पड़ा हुआ है 3। ठीक है, प्लस बी ऑफ ये आप करेंगे i-1, i में 1 है और -1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और w माइनस w1 वो हमारे पास 1 वाली लोकेशन आती है। ठीक है, ये हमारे पास ग्रेटर है b ऑफ i 0 1 से। ठीक है, ये हम देखेंगे तो फिर यहाँ पे हमारे पास 3 ही आएगा, क्योंकि यहाँ से भी 0 आ रहा है, यहाँ पे तो मैं 0 ही बचेगा, तो ग्रेटर देन हमारे पास ये भी 0, तो 3 ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे भी अगेन हमारे पास 3 आ जाएगा, जैसे कि मैं आपको शो करूँगी। एक आइटम है ना, तो आप जितना मर्जी वेट बढ़ा दें तो बाय डेफिनेशन उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आप चलें, अब हमारे पास 4 हो चुका है, अगेन वही प्रोसेस होगा। ये हमारे पास 2 है, w ऑफ i में 4 पड़ा हुआ है, तो 2 हमारे पास लेस है 4 से, यही कंडीशन चलेगी, और अगेन यहाँ पे 3 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक ही वेट है, सिर्फ कैपेसिटी हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो बेसिकली हमारे पास सपोज अगर एक फाइल हो और जितनी मर्जी हार्ड डिस्क करते जाए, वही फाइल का वेट सेम फॉर द लास्ट w फाइल। देख लें यहाँ पे भी सेम यही वाला होगा, क्योंकि w ऑफ i में हमारे पास क्या पड़ा है 2, और w में क्या पड़ा 5, तो ये इससे लेस है, तो हमारे पास सेम वही चीज़ आ जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। ठीक है, जी, तो अब हमने अपना आई की लोकेशन हमने चेंज कर ली है। आई हमारे पास अब जो है दूसरे कॉलम में आ गया, और आई इक्वल्स टू 2 से हम प्रोसीड करेंगे और ये पूरा कॉलम हम फिल करेंगे। ठीक है, तो बी आई की वैल्यू हमारे पास अब 4 हो गया, क्योंकि आइटम सेकंड भी हमारे पास आ गया है, पहले सिर्फ हमारे पास एक आइटम था। ठीक है,
तो ये आई जो है तब तक चलता रहता है जब तक हमारे पास आइटम 4 है, तो ये 4 तक प्रोसीड करेगा और जो हमारे पास वेट कैपेसिटी है वो 5 तक जाएगी, क्योंकि हमारे पास टोटल वेट मैक्स वेट 5 है। ठीक है, तो वहाँ तक हम चेक करेंगे कि व्हाट विल बी द फिजिबल सोल्यूशन। तो यहाँ से हम देखेंगे तो आई हमारे पास अब 2 हो गया, बी आई में जो नेक्स्ट जो आइटम 2 की बेनिफिट है वो 4 हो गया, और आई 3 में जो आइटम 3 का वेट है वो आ गया। ये मैंने आपको बताया था कि ये डब्ल्यू ऑफ आई है और ये बी ऑफ आई है। ठीक है, तो ये डब्ल्यू ऑफ 2 और बी ऑफ 2 की वैल्यूज हमने यहाँ मेंशन कर दी हैं। ठीक है, और इस वक्त दोबारा से हम कैपेसिटी के लिहाज से देख लें तो कैपेसिटी हमारे पास 1 है और W माइनस डब्ल्यू ऑफ 2, इस वक्त स्मॉल w 1 है और W ऑफ आई की वैल्यू 3 है, तो जो कि -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि देखें आपके पास कैपेसिटी 1 हो तो उसमें वेट 3 तो कभी भी अकोमोडेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या होगा कि आपके पास डब्ल्यू आई जो है वो हमारे पास 3 है और ये हमारे पास क्या है डब्ल्यू आई 3। ठीक है, ये लेस दैन इक्वल्स टू 1 है, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, तो फिर हम इस पोर्शन में जाएंगे जब हमारे पास डब्ल्यू ऑफ आई जो है वो क्या है 3 इज़ ग्रेटर देन 1, तो हम ये वाला केस चलाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमें पिछली ही हिस्ट्री में से कुछ पुट करना होगा। तो इस इंडेक्स ये यानी कि हमारे पास 3,1 के लिए जो डाटा डलेगा वो वही होगा जो बी ऑफ आई माइनस आई के अंदर इस वक्त वैल्यू 2 है तो वो 1 हो जाएगा, और W के अंदर वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 है तो 1 हो जाएगा। तो इट्स मीन कि इसमें वही पुराने वाला लोकेशन से डाटा आएगा जो कि B ऑफ 1 में स्टोर है। तो 1 और 1 में क्या स्टोर है, 0 स्टोर है। इट्स मीन कि नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे शो करोगे तो यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा, क्योंकि वेट इतना कम है और उसमें आप 3 को अकोमोडेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमारे पास ये लोकेशन आ गई, आई की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, लेकिन अब हमारे पास कैपेसिटी की वैल्यू चेंज होगी, W इक्वल्स टू 2 हो गया। ठीक है, इस पर भी हम चेक करेंगे कि हमारा वेट जो है अकोमोडेट हो सकता है या नहीं हो सकता है या क्या हो सकता है। तो W इक्वल्स टू 2 के ऊपर जो है हमारे पास आई हमारे पास 2 है और इसको हम चेक करेंगे। सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे, तो हमारे पास W5 में 3 पड़ा हुआ है और 3 इज़ लेस दैन इक्वल टू W जो अब है वो 2 है, तो अभी भी ये फॉल्स है तो इसमें जाएगा। जब हमारे पास W5 की वैल्यू बड़ी है तो पिछली लोकेशन से ही कोई वैल्यू उठा के यहाँ पे अकोमोडेट करेगा। तो आपको पता है कि BIW में इस वक्त आप यहाँ पे B और I के अंदर आपके पास क्या वैल्यू है 2। ठीक है, यहाँ पे देख लें I की वैल्यू 2 है और हमारे पास स्मॉल w की वैल्यू B2 है। तो ये वो लोकेशन बनती है, इस लोकेशन पे हमने सेटल करना है। तो यहाँ पे वैल्यू हम पिछली हिस्ट्री से ही निकालेंगे जो पिछले इंडेक्स में अवेलेबल है। तो 2 - 1 1 हो जाएगा और W में 2, यानी जो कुछ भी B ऑफ लोकेशन 1 और 2 में पड़ा हुआ है वो हमारे पास ये पड़ा हुआ है, तो वही हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यानी यहाँ पे हमारे पास 3 पुट हो जाएगा, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 पुट हो गए। और अगेन अब हमारे पास I की वैल्यू तो 2 ही रही, लेकिन कैपेसिटी की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, दोबारा हम चेक करेंगे तो हमारे पास W माइनस WI 0 बन रहा है, क्योंकि 3 दोनों में है। इट्स मीन कि पहला वाला केस जो है वो हमारा ट्रू हो जाता है, क्योंकि WI में भी 3 है और इधर भी 3 है। ठीक है, तो हम फिर ये वाला केस जो है वो रन करेंगे। ये इफ़ B ऑफ I में 4 पड़ा हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा 4 प्लस B में लोकेशन कौन सी है हमारे पास, बेसिकली लोकेशन में बनती है जब हमारे पास I - 1 है। I में क्या पड़ा हुआ 2, तो 2 - 1 क्या बनता है 1 और W माइनस W ऑफ I 0 बनता है। ठीक है, यहाँ पे हमने पुट कर दिया क्या, और क्या ये ग्रेटर देन है B ऑफ दूसरी लोकेशन से I - 2 - 1 1
और स्मॉल w जो कि हमारे पास 3 है। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि इसमें इफ पार्ट में ये वाला पार्ट चलेगा या ये पार्ट चलेगा। तो इसका डिसीजन इधर से होगा। तो यहाँ पे हमारे पास b ऑफ 1 0 में जो है इस वक्त b ऑफ 1 i से 1 और 0 1 और 0 में ये तो 0 ही है, तो यानी 4 ग्रेटर देन है b ऑफ 1 और 3। b ऑफ 1 और 3 में क्या पड़ा हुआ 3। यस, तो इट्स मीन कि यहाँ पे अब हमारे पास क्या आएगा, b ऑफ i में 4 पड़ा हुआ था, यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा जी। तो ये आपने देखा कि ये सारी इंस्ट्रक्शंस हम फॉलो करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं और फिर वो वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो इस वक्त यहाँ पे 4 आ गए क्योंकि 4 इज ग्रेटर देन 3 था। ठीक है, नेक्स्ट में अब w ऑफ 4 हो गया है। ठीक है, और आइटम हमारे पास अब 2 ही हैं, तो यही वाली वैल्यू बेसिकली अगले लोकेशंस पे प्रोसीड होती रहेगी और केस 1 ही ट्रू होता रहेगा। ठीक है, और यहाँ देख लें आपको यहाँ पे भी 4 आ जाएगा जी। अब हमारे पास लोकेशन में w5 आ चुका है और i स्टिल 2 है। ठीक है, अब हम दोबारा से चेक करेंगे कंडीशन। तो हमारे पास क्या आएगा, w ऑफ i में हमारे पास 3 पड़ा हुआ है, तो क्या वो लेस देन इक्वल टू w है, w में हमारे पास 5 है, दिस मीन 2 है। फिर हम यहाँ पे जाएंगे और दोबारा चेक करेंगे कि अब हमारे पास b ऑफ i में 4 है प्लस अब हमारे पास लोकेशन जो है कैपिटल B में कौन सी लोकेशन आएगी, हमारे पास i में 2 पड़ा हुआ है, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, कॉमा w माइनस w ऑफ i 2। ठीक है, तो B में जहाँ पे i की वैल्यू 1 है और जहाँ पे w की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये लोकेशन बनती है। ठीक है, जहाँ पे 1 है और 2 है ये लोकेशन बनती है। क्या ये ग्रेटर देन है इससे, यानी 4 प्लस 3 जो है 7 हो जाएगा। और ये वाली कौन सी लोकेशन आएगी, b ऑफ i माइनस 1 कॉमा स्मॉल w 5, यानी लोकेशन ऑफ 5 में हमारे पास जहाँ पे हमारे पास i की वैल्यू 1 थी और जो 5 था। ठीक है, वो ये 3 बनती है। तो हमारे पास क्या है, एक तरफ आ गया 7 और एक तरफ 3, तो 7 इज़ ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो इट्स मीन के ये ट्रू हो गया। तो इसी लोकेशन पे जो कि जिस लोकेशन के लिए हम बात करेंगे यहीं पे यही वैल्यू पुट हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास हम इसमें यहाँ पे 7 पुट कर देंगे। ठीक है, इस तरह हम देखेंगे कि यहाँ पे 7 आ गया। देख लें, इसमें हम पहली 3 लोकेशंस को शो करें क्योंकि उसमें आपकी हिस्ट्री की वैल्यू भी इधर से ही आ रही है। तो हम इन तीनों लोकेशन को इकट्ठा ही शो करें क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो यही वैल्यू रेप्लिकेट हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 0, यहाँ पे 3। कंडीशन आप खुद भी अपनी वेरिफिकेशन के लिए चेक कर सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए यहाँ तक ये इस तरह से प्रोसीड हो रहा है। तो इससे नेक्स्ट जो वैल्यूज़ है वो हम देखते हैं। अब इस लोकेशन के लिए हम करने लगे हैं तो हम पहले कंडीशन चेक कर लेते हैं। इस वक्त हमारे पास w में 4 आ चुके हैं, wi में भी 4 है, दोनों हमारे पास 4 इक्वल हो चुके हैं। ये वाली कंडीशन 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। b ऑफ i हमारे पास 5 है और प्लस b में हम देखेंगे तो ये i माइनस 1 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, कॉमा 0 और ग्रेटर देन, तो ये 5 प्लस 0 बनता है यहाँ पे जब i की वैल्यू 2 और w की 0 है तो। और दूसरी तरफ हमारे पास बनता है अगेन i माइनस 1 और जो हमारे पास w है उसकी वैल्यू है 4। ठीक है, तो जब i की वैल्यू 2 थी और w की वैल्यू 4 थी तो हमारे पास 4 बनता है। 5 इससे बड़ा है तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 5।
ठीक है, जैसे मैंने आपको शो किया। सेम हम यहाँ पे भी कंडीशन चेक करेंगे। हमारे पास W में वैल्यू 4 से 5 हो चुकी है और I में स्टिल 3 है, ठीक है, और W5 में 4 पड़ा हुआ है। तो हमारे पास जो W5 है वो 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि हमारे पास W(i) जो है वो 4 है और जो स्मॉल w है वो 5 है। तो 4 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू, सॉरी ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया। तो फिर दोबारा हमें ये वाली लोकेशन में देखना पड़ेगा, तो आपके पास यही वैल्यू दोबारा से सब्स्टिट्यूट हो जाएगी और ये केस ट्रू हो जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास यही वाली वैल्यू दोबारा रेप्लिकेट होगी और 7 आ जाएगा। अब इसमें भी हमारे पास जो 4 लोकेशंस है 0 से 1, 4, इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और पुरानी वैल्यूज़ ही रेप्लिकेट होंगी W1 से 4 तक। तो यहाँ पे 0, 3, 4, 5 जो है वो ही रहेंगी। तो इसलिए इन लोकेशंस को हम दोबारा कर भी लें तो आप अपने वेरिफिकेशन के लिए चेक कर लें, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे यही वैल्यूज़ रहेंगी जो पहले थर्ड कॉलम में थी, क्योंकि हमारे पास आइटम के अंदर जो वेट है उसकी कंडीशन जो है वो मैच नहीं करती, क्योंकि अब जो है हमारे पास BI 5 है तो वो इन सब में से तो किसी में भी कम्यूटेट नहीं हो सकता, तो फिर ओल्डर हिस्ट्री में यही वैल्यूज़ पड़ी। अब हम लास्ट इंडेक्स कर रहे हैं जिसमें एक तरफ I की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है और एक तरफ हमारे पास यहाँ पे क्या है 5 है। सॉरी, यहाँ पे आपको I4 लिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास W5 में 4 पड़ा हुआ है लेस देन इक्वल टू और स्मॉल w में 5 पड़ा, तो ये ट्रू हो जाता है। तो ये वाली कंडीशन चलेगी, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन चलेगी तो इट्स मीन कि हमारे पास जो ओल्डर वैल्यू है वही यहाँ पे रेप्लिकेट होगी। देखते हैं इस तरह से होगा और इस तरह से हमारा सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। That this algorithm only find the max possible value that can be carried in the knapsack. To know the item that make this possible value as an addition to this algorithm is necessary. Please see LCS algorithm from the previous lecture further how to extract this data from the table we built. तो ये आपने देखना है कि बैक ट्रैक करके आपने सबसेट इसमें से आपने निकालना है कि कैसे हमने शो किया है कि कौन सा मैक्स है। Conclusion: dynamic programming is a useful technique of solving certain kind of problem, and when the solution can be recursively described in terms of partial term, we can store these partial solution and reuse them as necessary, ठीक है। तो LCS में हमारी जो brute force की ये कॉम्प्लेक्सिटी थी, लेकिन LCS जब डायनेमिक प्रोग्रामिंग से किया तो आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसकी एफिशिएंसी क्लास ही चेंज होगी, यानी वो कम होगी। इसी तरह 0-1 knapsack अगर आप brute force से करें तो इसकी एक्सपोनेंशियल बनती है, लेकिन अगर आप वही चीज़ डायनेमिक से करें तो आपकी जो है वो ये आपके पास स्केयर में आ जाती है, स्केयर की फॉर्म W क्रॉस N की जो है बन जाती है, यानी डायनेमिक प्रोग्रामिंग सोल्यूशन का एफिशिएंसी भी कम कर देती है, यानी एफिशिएंसी उसकी क्लास वाइज रिड्यूस हो जाती है। So thank you, this is the end of lecture. So keep solve this problem by your own self so that you can solve the problem which are mentioned in your assignment 6.